یہ لیجیے مفتی عامر صاحب سے السلام علیکم حضرت. حضرت بولیے. حضرت الحمدللہ. حضرت ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنی تھی، جو یہ حلالہ ہوتا ہے یہ سنت کس کی ہے؟ کرتے ہیں یہ کس کی سنت سے کرتے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ حدیث نہیں پڑھے آپ. پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ آیا لفظ حلالہ ہم نے اپنے آپ گھڑ لیا ہے. اس میں حلالہ کو اگر آپ حلالہ کی نیت سے کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے. پہلے تو یہی سمجھنا ہے آپ کو، جو حلالہ جو آج کل عوام میں رواج ہے، اس رواج سے کرتے ہیں تو درست نہیں ہے. ایک منٹ قاضی صاحب، عوام میں کیا رواج ہے، تھوڑا اس کی وضاحت کریں. عوام میں یہ رواج ہے کہ طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، پہلے سے یا تو معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی 10 دن 5 دن رکھ کے طلاق دے دینا، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو یہ حلالہ جو کرتے ہیں یہ عالم لوگ تو کرواتے ہیں نا، وہ لکھ کے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ جاؤ ان کا حلال کروا کے لے کر آؤ. یہی تو آپ غلط فہمی میں ہے نا، آپ کو یہ سمجھنا نہیں تو ہوگا. پھر کون دیتا ہے یہ رواج شروع ہوا ہے؟ یہ عام آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہے نا جو اپنی مرضی سے کام کر لے. سنو تو بات سنو، اپنی سناتے رہو گے 3-4 جنا جوڑ کے میری بھی سن لو، اس کے بعد پہلے بات سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں حضرت آپ کی بات کہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں اس کے بعد 50 علماء جو ہے وہ خود ہی حلالہ کر دیتے ہیں، یعنی پیسے لے کر کہا جاؤ گا ہم ہی کر دیتے ہیں. بھائی نہیں، دیکھیے بات پہلے سنیے. کیا یہ فتویٰ دیتا ہے علماء کہ آپ نکاح کر کے 10 دن رکھ کے چھوڑ دینا؟ یہ فتویٰ آپ دکھائیے اگر کہیں دیتا ہے تو. اچھا حلالہ کیا ہے؟ تھوڑا حلالہ بتائیے آپ مجھے. آپ خود عالم ہے، آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. میری پہلے بات نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں، جو یہ حلالہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پر ہر کسی کے یہاں پر ہے کہ 3 دن 1 دن اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ سو گئی وہ، اور سونے بعد طلاق دلوائی، وہ لا کے دوبارہ اس کی شادی ہو گئی. تو سوال یہ ہے وہ جو حلالہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ کون کرواتا ہے؟ اس کا جو حلالے کا نکاح ہوتا ہے وہ کون کرواتا ہے؟ اور پھر اس کی طلاق اس کے حلالے کے بعد جو حلالے کے لیے نکاح ہوتا ہے اس کا ولیمہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ابو داؤد کا حاشیہ بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں. اگر نہیں آپ بتائیں ثابت کریں کہ حلالہ ثابت کہاں سے؟ یہ حلالہ لفظ جو ہے لڑکی کے ساتھ جو زنا ہو رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے یا امام ابو حنیفہ کی سنت ہے؟ آپ میری بات کو سنیے. یہ آپ خود گڑ لیے ہیں، آپ کے اندر غلط فہمی ہے اس کا. اگر کسی کو طلاق ہو جائے، سنو میری بات کو سنو. اگر مجھے بیان نہیں ہے، ایک منٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلاں صحابی نے حلالہ کرایا تھا، فلاں صحابیت کا حلالہ ہوا تھا، کس طریقے سے کروایا تھا وہ ذرا بتائیں آپ مجھے. وہ طریقہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، میں بتا رہا ہوں. پہلے میری بات سنو. آپ بتائیے نا، آپ کے یہاں ہوتا ہے نا حضرت، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا نا. تو سنو تو پہلے سننے کے لیے تیار تو ہو. یہ 2-4 جوڑ کے اگر سنو میری بات کو. اگر چار کو اس لیے جوڑا ہے، ان میں لوگ یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو حلالہ ہو رہا ہے، جو زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں انبیوں نے، اس کو یہ بیچارے یہ پوچھا جا رہا تھا یہ ہوتا کیا؟ میں نے عالم صاحب بتا دیں گے، اس سے بہتر یہ رہے گا کیونکہ وہ ہماری بات کو یقین نہیں رکھتے. آپ بہتان لگا رہے ہیں زنا لفظ استعمال کر کے. آپ پہلے میری بات کو سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو 10 دن 5 دن کے اندر پھر چھوڑ دیتا ہے یا مہینہ رکھ کر بھر کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اس نیت سے اگر کرتا ہے تو جائز نہیں ہے. سنو میری بات. حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنو، ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. حلالے کی نیت سے جب میری بات حلالہ آیا کہاں سے؟ جب حلالہ کرنا ہی گناہ ہے یہ آیا کہاں سے؟ بھائی میری بات تو پہلے سنیں. آپ میری بات پوری ہونے کے بعد آپ بولیں گے. یہ کوئی بات نہیں. مفتی انس قاسمی صاحب بتا دو جی. یہ میرے کو وہی بول رہے کہ یہ تمہارے امام صاحب نکالے سو ہے حلال، آپ بول رہے تمہارے امام صاحب کی سنت ہے بول کے بول رہے ہیں. ابھی قاسمی صاحب بول رہے ہیں کہ حلالے کی نیت سے نکاح کرنا ہی حرام ہے. بھائی میری بات یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے اور آپ لوگ بول رہا ہوں کہ تاکہ بات وضاحت ہو جائے گی. چلو آپ بتائیے. نہیں بھائی میں میری بات پوری ہونے دیجیے، پھر آپ اپنی بات کو رکھیں گے تو میں سنوں گا نا. ایسے کیسے بات میری پوری بھی نہیں ہو رہی ہے. بولے بولے. جس طرح سے نکاح اول کرتے ہیں، سنیں، جس طرح سے نکاح اول کرتے ہیں تو وہ چھوڑنے کی نیت سے آدمی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بالکل.
इसी तरह से वो दूसरों भाई के लिए मजबूरी के तहत अगर कोई करता है, समझे, लेकिन मसलिहत के तहत अगर फिर वो तलाक दे देता है उसको, तो फिर जो उसका पहले वाला शौहर था उसके लिए वो जायज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस नियत से करता है तो जायज है, लेकिन अगर ये 1 महीना 15 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए अगर करता है तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक आप दिखाइए कि अगर इस तरह करता है तो जायज है। ये लफ्ज हलाला जो है हम लोगों ने उर्फ आम में इस्तेमाल किया है और फिर जो है इसको लोग रिवाज बना लिए हैं। आप मुझे फतवा दिखाइए कहीं पर कि जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन या महीने भर के लिए निकाह करते हैं और फिर जो है ये भी कहलवा लेते हैं कि भाई कुछ दिन रख के तुम तलाक दे देना, ऐसा करना जायज है। आप दिखाइए इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर ऐसा है तो। अब बोलिए। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो इमाम अबू हनीफा की सुनो, सवाल ये है, इमाम अबू हनीफा की जो दलील है मैं भेजता हूँ। और अरे मेरे भाई आपने भी हलाले का 10 दफा नाम लिया, 10 दफा नाम लिया हलाले का आपने। भाई उर्फ में हलाला, आपने हलाले का 10 दफा नाम लिया, हलाला करना, हलाला ये, हलाला नाजायज है, हलाला ये बोले ना आपने। लफ्ज हलाला आप बताइए कुरान हदीस में ये जो इस्तेमाल हुआ है ये किसी इस्तेमाल हुआ है? भाई तो वही बोल रहा ना, उर्फ आम में जिस इस्तेमाल और उर्फ आम में जो चीज चल जाती है उसी के नाम से मासूम होते हैं, उसी को जो है बातों में लिया जाता है। हलाले का लफ्ज इस्तेमाल हुआ किस बात पर, ये बताइए आप मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला के बारे में क्या बोला? क्या बोला है? अल्लाह के रसूल ने बोला हलाला करने वाला करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है, और हलाला करने वाला करारा किराए का स्टैंड होते हैं। बोला नहीं बोला? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, एक मिनट अब आपने बात अपनी कर ली है, मेरी सुनिए आप। हाँ ठीक है। जब अल्लाह के रसूल ने बोला हलाले के मायने है जो हलाला करता है लानत उसके ऊपर, तो ये हलाला जो हनफियों में राइज है, हलाला हलाला हलाला, ये हलाला लानती काम इतना राइज क्यों है? हलाला सेंटर है साहब, हमारे 3 थे, बंद हो गए, मोदी साहब बंद करा 3 हलाला सेंटर। देखिए हो गया, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं बोलूं? आसिफ साहब बताइए, ये जो हलाले का जो मायने जो अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, अल्लाह की लानत होती है उस पर, तो फिर ये हलाला जो लफ्ज हलाला जो इस्तेमाल होकर जो काम हो रहा है, आपने खुद ने माना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। और करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? ये सब हनफी तो है मेरे भाई। मेरी बात सुनो। अब जब सरकार ने पाबंदी लगा दी तो आप लोगों ने ईमान कबूल कर लिया क्या? कुरान से लगा, पहले नहीं थे? मेरी बात सुनो, आपने लफ्ज हलाला का माना लानत लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह की नबी की हदीस है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी यकीन है, मैं भी मानता हूँ कि हलाला करने और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। ये लानत उन लोगों के मुस्तहिक है, उन लोगों के लिए है जो 10 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए अहद के साथ निकाह कर लेते हैं, करवा लेते हैं और फिर तलाक दे देते हैं, उसके लिए है। अगर इस तरीके पर कोई करता है तो वाकई वो लानत है। मैं लफ्ज हलाला में बहस करना चाह रहा हूँ आपसे। जो लोग 10 दिन 5 दिन की निकाह करते हैं उसको ही हलाला किया जाता है, वो ही हलाला होता है। और जो निकाह आम हो, जो निकाह के तौर पर हो, उसको हलाला नहीं किया जाता, उसको हलाला नहीं कहा जाता है। भाई आप देखिए, मेरी बात सुनो, मेरे कई ताल्लुकात रखने वालों ने निकाह किया, ठीक है। अगरचे उन्होंने मतलब तलाकशुदा औरत से निकाह किया, फिर वो छोड़ते तो पहले शौहर के लिए जायज बन जाती, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उन्होंने छोड़ा नहीं तो क्या उस पर लानत होंगे? उन्होंने छोड़ा ही नहीं। कासमी साहब, मैं लफ्ज हलाला पर आपसे बात कर रहा हूँ, आप पहले मेरी बात समझिए। आप खुद मानना है जो निकाह, कासमी साहब निकाह की दलील दे रहे, बात हलाले पे हो रही, दलाल निकाह के दे रहे हो। अरे नहीं, निकाह के नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, निकाह की दलील नहीं दे रहा हूँ। कासम मेरी बात सुन रहे आप। जो निकाह 10 दिन 5 दिन 2 दिन के लिए होता है उसको हलाला किया जाता है, उसी को हलाला कहा जाता है, और उसी पर अल्लाह की और अल्लाह रसूल की लानत होती है। ठीक है बात? देखिए यही बात है ना? मेरी बात आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। जो निकाह आम हो, जो निकाह का चाहे पहला हो या दूसरा हो, और वो निकाह बिना किसी शर्त के हो, वो उसको हलाले का लफ्ज इस्तेमाल होता ही नहीं। बिना शर्त, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हलाले का लफ्ज इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर मुआहदे पे शादी हो 2 दिन 4 दिन के लिए, उसको हलाला किया जाता है। और अगर मैं आपको ये दिखा दूं
کہ مدرسوں سے علماؤں نے فتویٰ دیا کہ اس لڑکی کا حلالہ ہوگا تب یہ اپنے پہلے شوہر کے بعد جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے اس پر کیا سزا ہوگی؟ پھر کیا حد سے لگے گی اس پر؟ میں فتویٰ دکھاؤں گا آپ کو مدرسوں کا، دیوبندی مدرسوں کا، کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس کا حلالہ لکھت میں دیا۔ قاضی صاحب ہلو، لائن پہ ہے قاسمی صاحب، مگر کہ اب انہوں لاجواب ہو گئے قاسمی صاحب۔ قاضی صاحب کدھر گئے؟ کر رہے یہ لیجیے مفتی علی صاحب سے۔ السلام علیکم حضرت۔ حضرت قاضی صاحب وشاہدیوں بولیے۔ حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنی تھی، جو یہ حلالہ ہوتا ہے یہ سنت کس کی ہے؟ حلالہ کرتے ہیں یہ کس کی سنت سے کرتے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ حدیث نہیں پڑھے آپ؟ پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ میں آیا لفظ حلالہ ہم نے اپنے آپ گھڑ لیا ہے اس میں۔ حلالہ کو اگر آپ حلالہ کی نیت سے کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ پہلے تو یہی سمجھنا ہے آپ کو، جو حلالہ جو آج کل عوام میں رواج ہے، اس رواج سے کرتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ ایک بار قاضی صاحب، عوام میں کیا رواج ہے، تھوڑا اس کی وضاحت کریں۔ عوام میں یہ رواج ہے کہ طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، پہلے سے یا تو معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی 10 دن 5 دن رکھ کے طلاق دے دینا، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ حلالہ جو کرتے ہیں یہ عالم لوگ تو کرواتے ہیں نا، وہ لکھ کے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ جاؤ ان کا حلال کروا کے لے کر آؤ۔ یہی تو آپ غلط فہمی میں ہے نا، آپ کو یہ سمجھنا نہیں تو پھر کون دیتا ہے؟ یہ رواج شروع ہوا ہے، یہ عام آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر لے۔ سنو تو بات سنو، اپنی سناتے رہو گے 3-4 جنا جوڑ کے میری بھی سن لو، اس کے بعد پہلے بات سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں حضرت آپ کی بات کر رہا تھا کہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں اس کے بعد 50 علماء جو ہے وہ خود ہی حلالہ کر دیتے ہیں، یعنی پیسے لے کر کہا جاؤ گا ہم ہی کر دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، دیکھیے بات پہلے سنیے، کیا یہ فتویٰ دیتا ہے علماء کہ آپ نکاح کر کے 10 دن رکھ کے چھوڑ دینا؟ یہ فتویٰ آپ دکھائیے اگر کہیں دیتا ہے تو پھر ہم اس کے قائل نہیں۔ حلالہ کیا ہے، تھوڑا حلالہ بتائیے آپ مجھے۔ آپ خود عالم ہے، آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، میری پہلے بات سنیے۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، جو یہ حلالہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پر ہر کسی کے یہاں پر ہے، جو 3 دن 1 دن اس نے کسی غیر مرتبہ سو گئی وہ، اور سونے بعد اگلے دن طلاق دلوائی، اور لاجو دوبارہ اس کی شادی ہو گئی، تو سوال یہ ہے وہ جو حلالہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ کون کرواتا ہے؟ اس کا جو حلالہ کا نکاح ہوتا ہے وہ کون کرواتا ہے؟ اور پھر اس کی طلاق، اس کے حلالہ کے بعد جو حلالے کے لیے نکاح ہوتا ہے اس کا ولیمہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ابو داؤد کا حاشیہ بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں۔ اگر نہیں، آپ بتائیں ثابت کریں کہ حلالہ ثابت کہاں سے؟ یہ حلالہ لفظ جو ہے لڑکی کے ساتھ جو زنا ہو رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے یا امام ابو حنیفہ کی سنت ہے؟ آپ میری بات کو سنیے، یہ آپ خود گڑھ لیے ہیں، آپ کے اندر غلط فہمی ہے اس کا۔ اگر کسی کو طلاق ہو جائے، سنو میری بات کو سنو، اگر مجھے بیان نہیں ہے، ایک منٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلاں صحابی نے حلالہ کرایا تھا، فلاں صحابیت کا حلالہ ہوا تھا، کس طریقے سے کروایا تھا، وہ ذرا بتائیں آپ مجھے۔ وہ طریقہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، پہلے میری بات سنو۔ آپ بتائیے نا، آپ کے یہاں ہوتا ہے نا حضرت، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا نا۔ تو سنو تو پہلے سننے کے لیے تیار تو ہو، یہ 2-4 جوڑ کے اگر سنو میری بات کو۔ سنا اگر چار کو اس لیے جوڑا ہے، ان میں لوگ یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو حلالہ ہو رہا ہے، جو زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں انبیوں نے، اس کو یہ بیچارے یہ پوچھا جا رہا تھا یہ ہوتا کیا؟ میں نے عالم صاحب بتا دیں گے، اس سے بہتر یہ رہے گا کیونکہ وہ ہماری بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ بہتان لگا رہے ہیں زنا لفظ استعمال کر کے۔ آپ پہلے میری بات کو سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو 10 دن 5 دن کے اندر پھر چھوڑ دیتا ہے یا مہینہ رکھ کر بھر کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اس نیت سے اگر کرتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ سنو میری بات، حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنو، ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، حلالے کی نیت سے۔ اب سوال یہ ہے جب میری بات کو، حلالہ آیا کہاں سے؟ جب حلالہ کرنا ہی گناہ ہے یہ آیا کہاں سے؟
भाई मेरी बात तो पहले सुने आप मेरी बात पूरी होने के बाद आप बोलेंगे, ये कोई बात नहीं। मुफ्ती अनस खासमी साहब बता दो जी, ये नो मेरे को वही बोल रहे कि ये तुम्हारे इमाम साहब निकाले सो है हलाला बोल रहे, तुम्हारे इमाम साहब की सुन्नत है बोल के बोल रहे हैं। अभी काजी साहब बोल रहा है कि हलाले की नियत से निकाह करना ही हराम है। भाई मेरी बात तो सुने, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप सामने वाले को बोलने नहीं देते, और आप लोग जो है एक बोल रहा हूँ ताकि बात वजाहत हो जाएगी। चलो आप बताइए। नहीं भाई मैं अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रखेंगे तो मैं सुनूंगा ना। ऐसे कैसे बात मेरी पूरी भी नहीं हो रही है। ठीक है साहब, ठीक है, बोले काजी साहब बोले। जिस तरह से निकाह अव्वल करते हैं, सुने, जिस तरह से निकाह अव्वल करते हैं तो वो छोड़ने की नियत से आदमी नहीं करता, ठीक है? बिल्कुल। इसी तरह से वो दूसरों भाई के लिए मजबूरी के तहत अगर कोई करता है, समझे, लेकिन मसलिहत के तहत अगर फिर वो तलाक दे देता है उसको, तो फिर जो उसका पहले वाला शौहर था उसके लिए वो जायज हो जाएगा। ठीक है। इस नियत से करता है तो जायज है, लेकिन अगर ये 1 महीना 15 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए अगर करता है तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक आप दिखाइए कि अगर इस तरह करता है तो जायज है। ये लफ्ज हलाला जो है हम लोगों ने उर्फ आम में इस्तेमाल किया है, और फिर जो है इसको लोग रिवाज बना लिए हैं। आप मुझे फतवा दिखाइए कहीं पर कि जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन या महीने भर के लिए निकाह करते हैं और फिर जो है ये भी कहलवा लेते हैं कि भाई कुछ दिन रख के तुम तलाक दे देना, ऐसा करना जायज है। आप दिखाइए इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर ऐसा है तो। अब बोलिए। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो इमाम अबू हनीफा की सवाल ये है, अबू हनीफा की जो दलील है मैं भेजता हूँ। और अरे मेरे भाई आपने भी हलाले का 10 दफा नाम लिया, 10 दफा नाम लिया हलाले का आपने। भाई उर्फ में हलाला, आपने हलाले का 10 दफा नाम लिया, हलाला करना, हलाला ये, हलाला नाजायज है, हलाला ये बोले ना आपने। लफ्ज हलाला आप बताइए कुरान हदीस में ये जो इस्तेमाल हुआ है ये किसी इस्तेमाल हुआ है? मैं तो वही बोल रहा ना, उर्फ आम में जिस चीज का इस्तेमाल और उर्फ आम में जो चीज चल जाती है उसी के नाम से मासूम होते हैं, उसी को जो है कुरान में लिया जाता है। हलाले का लफ्ज इस्तेमाल हुआ किस बात पर, ये बताइए आप मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाले के बारे में क्या बोला है? अल्लाह के रसूल ने बोला हलाला करने वाला, करवाने वाला ऊपर अल्लाह की लानत है, और हलाला करने वाला किराए का स्टैंड होते हैं। बोला नहीं बोला? हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, देखिए एक मिनट अब आपने बात अपनी कर ली है, मेरी सुनिए आप। हाँ ठीक है। जब अल्लाह के रसूल ने बोला हलाले के मायने है जो हलाला करता है लानत उसके ऊपर, तो ये हलाला जो हनफियों में राइज है, हलाला ये हलाला लानती काम इतना राइज क्यों है? हलाला सेंटर है साहब, हमारे 3 थे, बंद हो गए, मोदी साहब बंद करा 3 हलाला सेंटर। देखिए हो गया, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं बोलूं साहब बताइए नहीं, ये जो हलाले का जो मायने अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, अल्लाह की लानत होती है उस पर, तो फिर ये हलाला जो लफ्ज हलाला जो इस्तेमाल होकर जो काम हो रहा है, आपने खुद ने माना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, और करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? ये सब हनफी तो है मेरे भाई। मेरी बात सुनो। अब जब सरकार ने पाबंदी लगा दी तो आप लोगों ने ईमान कबूल कर लिया क्या? कुरान से लगा, पहले नहीं थे? मेरी बात सुनो, आपने लफ्ज हलाला का माना लानत लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह की नबी की हदीस है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी यकीन है, मैं भी मानता हूँ कि हलाला करने और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। ये लानत उन लोगों के मुस्तहिक है, उन लोगों के लिए है जो 10 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए अहद के साथ निकाह कर लेते हैं, करवा लेते हैं और फिर तलाक दे देते हैं, उसके लिए है। अगर इस तरीके पर कोई करता है तो वाकई वो लानत मैं लफ्ज हलाला में बहस करना चाह रहा हूँ आपसे। जो लोग 10 दिन 5 दिन की निकाह करते हैं उसको ही हलाला किया जाता है, वो ही हलाला होता है। और जो निकाह आम हो, जो निकाह के तौर पर हो, उसको हलाला नहीं किया जाता, उसको हलाला नहीं कहा जाता है। भाई आप देखिए मेरी बात सुनो, मेरे कई ताल्लुकात रखने वालों ने निकाह किया, ठीक है। अगरचे उन्होंने मतलब तलाकशुदा औरत से निकाह किया, फिर वो छोड़ते तो पहले शौहर के लिए जायज बन जाती, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो क्या उस पर लानत होंगे?
उन्होंने छोड़ा ही नहीं बल्कि रख लिया। मैं कासमी साहब, कासम, मैं लफ्ज हलाला पर आपसे बात कर रहा हूँ। आप पहले मेरी बात समझिए। आप खुद मानना है जो निकाह कासमी साहब निकाह की दलील दे रहे, बात हलाले पे हो रही, दलाल निकाह के दे रहे हो। अरे नहीं, निकाह की नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, निकाह की दलील नहीं दे रहा हूँ। कासम मेरी बात सुन रहे आप। जो निकाह 10 दिन 5 दिन 2 दिन के लिए होता है उसी को हलाला किया जाता है, उसी को हलाला कहा जाता है, और उसी पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की लानत होती है। ठीक है बात? देखिए यही बात है ना। मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। जो निकाह आम हो, जो निकाह का चाहे पहला हो या दूसरा हो, और वो निकाह बिना किसी शर्त के हो, वो उसको हलाले का लफ्ज इस्तेमाल होता ही नहीं। बिना शर्त, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हलाले का लफ्ज इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर मुआहदे पे शादी हो 2 दिन 4 दिन के लिए, उसको हलाला किया जाता है। और अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि मदरसों से उलमाओं ने फतवा दिया कि इस लड़की का हलाला होगा तब ये अपने पहले शौहर के पास जाएगी, तो आप मुझे बताइए इस पर क्या सजा होगी? फिर क्या हाथ लगेगी उस पर? मैं फतवा दिखाऊंगा आपको मदरसों का, देवबंदी मदरसों का, कि उन्होंने हुक्म दिया कि इसका हलाला लिखत में दिया। कासमी साहब, हेलो, लाइन पे है कासमी साहब, मगर के अब लाजवाब हो गए कासमी साहब। कासमी साहब किधर गए? कर रहे कासमी साहब, यहाँ पर बात चल रही है लफ्ज हलाला पर। अगर मैं आपको देवबंदी बरेलवी मदरसों से लिखत के दिखा दूं कि इस लड़की का हलाला होगा जब ये रुजू करेगी, तो मेरे बात उसके सुनो, ऊपर आप क्या बताएंगे? मेरी बात सुनिए। मैं ये आप जो बोल रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि लानत के मुस्तहिक है एक शख्स। अरे तो मदरसे वाले, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे इमाम अबू ने तो दिखाओ, ये मदरसे वाले के अपने घर की दीन चला रहे हैं फिर क्या? मेरी बात तो आप समझ रहे हैं। जो दारुल इफ्ता से फतवे आ रहे हैं और उन्हीं फतवों के ऊपर लोग हलाला करवाने के लिए जा रहे हैं, और बल्कि ये लोग तो इसी बात पर अहले हदीस हो गए कि उन्होंने जब आके उलमाओं से अहले हदीस से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये औरत का तलाक ही नहीं हुई तो इसका हलाला कैसा? उन्होंने कुरान की दलाइल से फतवे देकर उनकी शादी, उनको दोबारा रुजू करवा दिया बिना किसी हलाले के। देखो, मेरी छोटी से सवाल का आप जवाब दीजिए। आपके यहाँ एक तलाक है, एक तलाक दे देंगे। अभी बात वो काजी साहब निकल रही, एक मिनट छोड़ो, एक तलाक दूसरा की बात निकल रही, लफ्ज हलाला पर आपने भी माना कि ये काम हो रहा है, 10 दिन 5 दिन की शादी हो रही है। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ अगर मुआहदे के तौर पर अगर किसी ने निकाह किया है मुआहदे के तौर पर, तो वो लानत के मुस्तहिक है। ये तो वो हलाला ही तो हो रहा है। वो करवा कौन रहा है? मदरसों से जो फतवे दिए जा रहे हैं, अगर किसी की तलाक हो जाती है, बोले ये इसको साहब मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, तो बोले इसका हलाला करवाओ, और बस 20 लाख लड़कियों के हलाले हो गए, हुए नहीं हुए? आप बताइए। सुनो मेरी बात, मैं तो बोल रहा हूँ ना, करने वाले हनफी बल्कि ज्यादा हलाला करने वाले मौलवी लोग थे। सुनो, कोई भी हमको उससे बहस किया, वाला ना अमानुना वाला कुम अमानुकुम। मेरी बात सुनो, एक शख्स ने हलाले के नियत से, यानी हलाला उसने मुआहदे के तौर पर ये नहीं कहा कि मैं 2 दिन में 3 दिन में निकाह करने के बाद छोड़ देता हूँ, ठीक है, और उन्होंने निकाह कर लिया। ये मालूम है कि ये तलाकशुदा औरत है, लेकिन उससे निकाह किया, उसको बच्चे भी हैं, उस शौहर के पास है, उसने निकाह किया, और उन्होंने जो है नहीं छोड़े, उसको तलाक नहीं दिया, बल्कि 10 दिन 2 महीना साल भर गुजर गए और बोल दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ये शख्स लानत के मुस्तहिक होंगे? अरे मेरे कासमी भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो, फिर पता नहीं मौजूद से हटने की बात कर। मैं लफ्ज़ हलाला करो, जिसने ऐसा निकाह किया वो तो हलाला नहीं है ना। मैं हलाले की बात कर रहा हूँ। कुरान में कहीं हलाले का हुक्म है? जो आज लाखों माँ बहनों के हलाले करवा के उनके साथ जिना करवाया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप नहीं समझ सकते, सिर्फ अपनी ही बातें रख रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि किसी ने देखिए, आपने ये तो माना कि 2 4 दिन 5 दिन का जो निकाह होता है वो निकाह नहीं है, वो जिना है। मैं उसको जिना नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा करता है, मुता तो है, वो मुता हराम नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये है क्या? अरे हमें क्या पता, तुम लोग दिलवा दो भाई, तो मुकल्लिद तुम, हम बताएंगे इमाम अबू हनीफा ने क्या बोला। तो मैं फतवा दे रहा है। अच्छी बात है ना। तो यही तो, अब मेरी तो बात सुनो, तुमको नहीं मालूम है तो मैं कहता हूँ यही इमाम अबू हनीफा के नजदीक नहीं है। मदरसों से ही फतवे जारी हो रहा नहीं हो रहा है, बताइए आप मुझे। और वही आलिम, वही मौलाना, बताइए। अभी जो गवर्नमेंट में जो कानून पास हुआ था, उससे पहले जो मीडिया ने रिसर्च करी, मौलवियों से
छुपका चोरी बात हुई, उनसे पूछा गया तो बोले कि 50,000 रुपये लूंगा, हलाला मैं कर दूंगा। अरे भाई आप फतवा भेजाइए। और ये इमाम देखिए, अब शराब का पीना दुरुस्त नहीं है, ठीक है, जायज नहीं है, हराम है। अगर कोई पीता है नहीं, अभी उधर नहीं आइए, अभी आप लोग ये बताइए, ये जो आपने खुद ने माना है कि हलाला होता है और ऐसे लोग लानत के मुस्तहिक हैं, आपने खुद ने माना। हाँ। और मैं आपको लफ्ज हलाला के मायने बता रहा हूँ कि जो मुआहदे पे हो उसको ही हलाला बोला जाता है। अब जब मदरसों से हलाले का हुक्म हो कि इसका हलाला होगा तो लड़की अपने पहले शौहर पे रुजू करेगी, हलाला होगा, यानी डायरेक्ट मदरसे जिना करने के लिए ऑफर दे रहा है, कह रहा है भाई हलाला करवा ला। अरे भाई तो आप सोएगी, 2 रात सोएगी। आप फतवा भेज दें। और दूसरी बात ये सुनिए, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके जिम्मेदार इमाम अबू हनीफा होंगे क्या? इमाम अबू हनीफा है और कौन है उसके? इमाम अबू हनीफा है और कौन है? मौलाना जुबान की हिफाजत कीजिए और दूसरों को बोहतानबाजी से जो है जरा दरकिनार रहिए। आप हनवी हो, इमाम अबू हनीफा से मंसूब हो आप। हाँ तो आप मुझे कह सकते हैं, सुनिए आप उन्हीं के मसलों को अमल करते हो आप। सुनिए, मुझे कह सकते हैं आप, लेकिन इमाम अबू हनीफा को तो नहीं कह सकते ना भाई। अगर कोई बिल्कुल कर रहा है, यही तो ना समझी की दलील है। अगर उम्मत गुमराह हो गए, उम्मत अगर गुनाह करेंगे तो क्या इसका दारोमदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे, सहाबा को बताएंगे, बड़े से बड़े किसको बताएंगे आप? उम्मत अगर गुमराही में डूबे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, जिनाकारी कह रहे हैं तो कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार नबी और सहाबा होंगे। इसी तरह से अगर हलाला करते हैं इस तरीके से तो इसके जिम्मेदार इमाम अबू हनीफा नहीं होंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो ये करते हैं। आपके साथ शराब पीता है, वो आलिम से पूछे नहीं आता मैं शराब क्यों नहीं पीऊं, लेकिन जब वो हलाला करने के लिए वो आदमी बगैर आलिम के हलाला होता ही नहीं है। निकाह पढ़ाने वाला, हलाला करवाने वाला भी आलिम होता है, वो भी हनफी होता है। ये थोड़े किसी और से करवा रहा है, वो किसी हिंदू पंडित से करवा रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जब एक मुतल्लका को जायज दूसरे के लिए जायज करेंगे, यानी पहले शौहर के लिए, तो क्या सूरत इख्तियार करेंगे आप? वो तो नॉर्मल निकाह है ना, उसमें हलाले का नॉर्मल नहीं होगा। आए क्या कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप? क्या करें, कुछ भी नहीं करें, निकाह का लफ्ज इस्तेमाल होगा या हलाले का इस्तेमाल होगा? हाँ तो यही तो नहीं समझ रहे आप। देखिए, एक शख्स ने हलाले की नियत से निकाह किया, ठीक है, एक शख्स ने हलाले की नियत से निकाह किया और उसने जो है उसको छोड़ा ही नहीं, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में ही रख लिया, क्या वो लानत के मुस्तहिक होंगे? बताइए आप। मतलब उसने निकाह हलाले की नियत से करा, हाँ, और छोड़ा नहीं, उसने अपनी जिंदगी में रख लिया, तो उसका निकाह ही नहीं हुआ। निकाह नहीं, यही तो निकाह के लिए क्या शर्त है बताइए? नियत शर्त है। शर्त ये है कि निकाह की नियत भी तो उसकी हराम की नियत करके हलाल हो जाएगा। ये तो इमाम शाफी के नजदीक भी नियत शर्त नहीं है, बल्कि क्या वो कबूल शर्त है। इमाम शाफी का बाप हो, उससे क्या मुराद है? एक आप नहीं आप इमाम शाफी के मतलब को आमतौर पर लेते हैं, तो आप निकाह के लिए नियत शर्त है। नियत ये हो कि मैं इससे शादी करके 2 दिन बाद छोड़ दूंगा, नियत तो ये है उसकी। अब उसने नहीं छोड़ा, लेकिन उसने नियत तो हराम की करी थी ना, लानत हराम की। अच्छा, तो निकाह कब हुआ? असल इजाबो कबूल है, समझे, और गवाह है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे। सलीम भाई, बुखारी की पहली रिवायत है कि अमाल का दारोमदार नियत पे। बुखारी अमाल क्या है? आप अमाल और अफआल को समझिए, पहले नियत का दारोमदार अमाल का है। कासमी साहब, एक आदमी चोरी करता है, चोरी की नियत से जाता है और उसके बाद में वो चोरी करने के बाद उसको माल उसका वो वापसी कर देता है कि भाई मैंने नियत चोरी करी थी, लेकिन मैं तुझे माल वापसी कर रहा हूँ, तो क्या उस पर चोर की हद नहीं लगेगी? चोर की हद वो आप ही बता सकते हैं। आप देखिए, वो अलग एक मसला बनेगा। आप तुम नहीं, मुझे नहीं, बात आप कि एक आदमी चोरी करता है, उसको माल वापस कर देता है, तो उस पर चोरी का कोई जुर्म नहीं लगेगा, उस पर माफ हो गई चोरी उसकी। सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। एक मसले में एक रिवायत है, ये मसले में एक रिवायत है, एक साहबी ऐसी चादर छुड़ाते हैं। बात का जवाब दें कि चोरी करने के बाद अगर माल वापसी कर दे तो उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा, वो चोर नहीं हुआ, चोर हुआ क्या हुआ? वो तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन देखिए वो पहले आप बताइए, आप बताइए, देखिए पहले आप बताइए, चोरी करने वाला अगर माल वापसी कर दे तो चोरी मानी नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात है या इन्नमल अफ़आलु बिन्नियात है?
जिस चीज के लिए नियत शर्त होती है, अगर नवल अमाल बिनियत अमाल जो है वो उसके जो अमल है वो नियत उसकी जो है वो अपनी नियत से काम कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चोरी करी, माल वापस कर दिया, लेकिन फिर भी चोर कहलाएगा वो, उस पर चोरी का वो लगाई जाएगी, हाथ लगाई जाएगी उस पर। इसी तरह से जिसने हलाले की नियत से निकाह करा हो वो तो पहले से लानती है। अच्छा, लानती है। आप ये कहना चाह रहे हैं जिसने हलाले के नियत से निकाह, देखिए उससे कहा भाई निकाह कर लो, ठीक है, अरे भाई चंद दिनों के अंदर सुनो पहले। अल्लाह की लानत हो। अच्छा, अल्लाह की लानत क्या मायने आपके बताइए जरा मुझे आप। अल्लाह की लानत के माने तो आप बेहतर जानते होंगे। क्या बोलते पहले तो आप मुफ्ती आप है मैं बताता हूँ। अल्लाह की लानत के मायने होते हैं जिस पर अल्लाह की लानत हो जाए उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपकी ये, इसका मतलब ये है कि लानत गलत है तो उसका निकाह भी कबूल नहीं हुआ। आप 3-4 जो है, आप पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खैर अब आपका ये कहना है कि अगर हलाले की नियत से किया है तो उसका निकाह ही नहीं हुआ और वो जिना में मुब्तला हुए। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हलाला की नियत से किया और उसने जिंदगी को नहीं छोड़ा है। मैं कल आप इस बात पर मैं तो मानते हैं हूँ आपके उलमा को तो मानते हैं, उस हदीस को तो मानते हैं जो हलाला करता है उस पर अल्लाह की लानत होती है, ये तो मानते हैं ना आप। ये तो मानता हूँ, तो इसके जिम्मेदार इमाम अबू हनीफा होंगे क्या? ये जो हलाले की नियत से काम करेगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, और अल्लाह की लानत के मायने ये है कि जिस पर अल्लाह की लानत हो उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता, तो निकाह कैसे कबूल हो जाएगा उसका? अच्छा, जिस पर अल्लाह की लानत उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कहाँ से आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई? आप बताइए क्या मतलब है इसका? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपको अभी और जरूरत है। मुफ्ती साहब क्या है भाई, पूरा गड़बड़ कर दे रहे यार। वो गड़बड़ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ ले रहे कहते हैं भाई तुम्हारी बीवी, तुम्हारी घर की किसी औरत का तुम हलाला कराना पसंद करते क्या? पहले तो ये बात है आप लोगों का ये बिल्कुल गलत है। तुम सब लोग अहले हदीस हो और आपस में हनफी और हदीस बन जाके खून करते हो, तो ये गलत तरीका है। एक जने खून करे। हम काहे को फोन पे भी सर्टिफिकेट देते हैं तुम्हारे को, जिस पे लानत होती है वो कबीरा गुनाह होता है, कबीरा गुनाह की दावत दे रही। एक औरत जो है, हाँ देखिए इख्तिलाफ सुने, कर ले रहा है,